Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. In today's lecture, you will study the leveling effect and differentiating effect of solvent. In the same lecture, you will also study the Kenonite theory of indicator. Student, we will start our lecture. First, we will see what is the meaning of leveling effect and differentiating effect of solvent. Before going to see this slide, I will show you some example on board so that you will be able to understand this whole concept. In today topic, you are aware of some definition of acid and bases according to Lewis concept. For example, according to Lewis concept, there are two main things, that is acid and bases. So according to Lewis concept, we can say that acid are those species which are proton donor. So we can say that any species which donate proton is known as a acid. Acid. So we can say that acid are those which can donate its proton. So it is classified as a proton donor. It means that acids are proton donor. In another example, we can say that base are those species which can accept the proton. So in other words, bases are proton acceptor, right? Now we will see the other example of acid and bases. There are some acid, strong acid like perchloric acid in this form, HClO4, which is known as perchloric acid. In the same way, nitric acid, sulfuric acid, all these are the some examples of acid. While according to base, while the example of base include ammonia. Ammonia is your familiar example. In the same way, another example like hydrazine and other species which can accept the proton. So any species which can accept the proton, they are known as, I think that there is some issue here. It should be 3. That is ammonia and hydrazine. Its name is hydrazine. On ammonia, you can say that there is the presence of lone pair of electron. It means the lone pair of electron are reside on ammonia, so it can accept the proton. Now we will move toward the formation of acid and bases and their concept, which clear the idea about it. That is, here is the example of acid, that is your nitric acid. Now we can see that nitric acid can donate its proton. It means nitric acid has an ability to donate its proton as well as the formation of nitrate ion. So here in this example, you have seen that acid has donate its proton. So any other species which can enhance the ionization of this acid, any species which can enhance the formation of this acid, ionization of this H positive ion, will result in the moving of this reaction toward the forward side.
सो बच्चों हमें यहाँ से ये आइडिया हुआ कि एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोटॉनों को डोनेट करते हैं। तो अगर इस रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसी स्पीशी आ जाती है जो कि इस एच पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन को बढ़ा दे, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे बढ़ेगी। तो अभी आपके सामने जो है वो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखी। तो इस एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड, इसने अपना जनरली क्या किया, इस प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि इस रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसी स्पीशी आ जाती है जो कि इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने कुछ एग्जांपल हैं, दैट इज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। आपके सामने बच्चों मैं एक और एग्जांपल रखने लगी हूँ सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आपको समझ आए। ये बच्चों हमारे पास कंपाउंड है दैट इज नोन एज द सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इन अनदर एग्जांपल वी कैन say that some other compound like sodamide, that is NaNH2, NaNH2, ठीक है। इसका नाम क्या है, सोडियम अमाइड भी इसको बोलते हैं, सोडा अमाइड भी बोल देते हैं। तो आप इसको सोडियम अमाइड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास वो कंपाउंड है दैट इज सोडियम हाइड्राइड एंड सोडियम अमाइड। ये दोनों अगर आप इस रिएक्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो वर्क करती हैं एज अ बेस के तौर पे। यानी इनका फंक्शन क्या है कि ये जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। कि फर्स्ट किया हमने इसको इस रिएक्शन में ऐड कर दिया, बाय एडिंग इन दिस रिएक्शन ये जो दोनों चीजें हैं ये किसके तौर पे अपना बच्चों रोल प्ले करेंगी, एज अ बेस, ठीक है। ये फंक्शन जो है वो नॉर्मली क्या करती हैं, एज अ बेस के तौर पे करती हैं। तो अभी आपको बताया था कि बेसिस क्या होती हैं, बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। बेसिस के अंदर किस चीज की एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉनों को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो हर वो चीज जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, इट मीन अगर आपने इस रिएक्शन के अंदर ये बेस दैट इज सोडियम अमाइड या सोडियम हाइड्राइड ऐड कर दी, तो जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो ये फौरन से इस प्रोटॉन को अपने साथ ले लेंगे एंड आफ्टर इट्स combination they both will produce that is the NaNH2 या फिर NaNH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज की प्रोडक्शन होगी, दैट इज NaNH2, ठीक है। या फिर इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर आप NaNH3 की फॉर्मेशन होगी, और चूंकि अब नाइट्रोजन ने जो है यहाँ पे इस केस में 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो बच्चों इसके 4 बॉन्ड जब भी बनते हैं तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी आपने इसको देखना है तो हम ये कहते हैं कि अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपली हमारे पास क्या हो रहा था कि नाइट्रिक एसिड जो है वो पहले आयनाइज हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड NO3 नेगेटिव आयन। लेकिन जब आपने इस मीडिया के अंदर क्या चीज ऐड की, कोई बेस ऐड कर दी लाइक सोडियम अमाइड या सोडियम हाइड्राइड या कोई और बेस जो कि इस रिएक्शन में क्या करेगी, इससे प्रोटॉन को ले लेगी। तो अब आप यहाँ देखिए, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो अब ये कोई और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट इस साइड पे क्या होगा, कमी होना शुरू हो जाएगी H पॉजिटिव आयन की। तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए ये रिएक्शन अब क्या होगा, मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एज ए रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विल बी इंक्रीजेज। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जब आप रिएक्शन में आमतौर पे एसिड दो तरह से रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तरह से एक्वस मीडिया होता है उनका, और एक तरह से आप अगर इसका सॉल्वेंट या इसका मीडिया चेंज कर दें, क्योंकि आप जानते हैं वो जो नाइट्रिक एसिड जो है वो आयंस में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब आपने उसके आयंस की फॉर्मेशन के लिए उसमें कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। लेकिन इस केस में आपने कौन सा सॉल्वेंट ऐड किया है, दैट इज योर बेसिक सॉल्वेंट। तो बेसिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या हुआ कि बेसिक सॉल्वेंट ने इस H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन को इनहांस किया है एक तरह से, क्योंकि इसने प्रोटॉनों को एक्सेप्ट किया है। तो एज ए रिजल्ट तमाम एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमारे माइंड में क्या चीज क्लियर हुई कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड will be increased in the presence of
इन दी प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बेसिक सॉल्वेंट था लाइक सोडियम हाइड्राइड या सोडियम अमाइड, इनकी प्रेजेंस में क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे इस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है, इनहांस हो गई है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हुआ कि इस तरह से इस बेसिक सॉल्वेंट ने आके क्या किया, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। अब इस एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बच्चों आपकी बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दैट इज नोन एज द लेवलिंग ऑफ। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है, लेवलिंग ऑफ। इस लेवलिंग ऑफ का क्या मतलब है? अब लेवलिंग ऑफ को वैसे तो हम जनरली अभी आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे लेवलिंग ऑफ का मतलब ये आ रहा है बच्चों कि चूंकि एसिड की स्ट्रेंथ दो तरह से इन्हांस हो रही है। अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि एसिड जो है वो क्या करते हैं, दो तरह से रिएक्ट करते हैं। वन इज इन एक्वस मीडियम। ठीक है, एक उनका मीडिया क्या है बच्चों, एक इनका मीडिया है दैट इज द एक्वस मीडिया, और दूसरा क्या है उनका एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया के अंदर अगर वो जाएं तो उनका क्या इफेक्ट होगा। तो आप ये जानते हैं कि सिंपल अगर एक्वस मीडिया हो किसी भी एसिड के लिए या बेस के लिए, तो सिंपल एक्वस मीडिया में आप जानते हैं कि जितने भी एसिड होते हैं वो अपनी एक पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि आया वो मैक्सिमम आयनाइज हो रहे हैं, आया वो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो फुली तौर पे अपने एच पॉजिटिव आयन को क्या करेगा बच्चों, डोनेट कर देगा। तो अगर तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, सॉल्वेंट जो आपका यूज कर रहे हैं आप, अगर वो एक्वस मीडिया है, तो एक्वस मीडिया के अंदर हर एसिड अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उनकी कैपेबिलिटी लाइक अगर आप यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एसिटिक एसिड, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये इन सारे एसिड्स के बारे में हम जानते हैं कि हर एसिड की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जनरली कहते हैं कि परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि हम एसिटिक एसिड कहते हैं कि ये वीक एसिड होता है। ठीक है, तो इसके पास 4 प्रोटॉन है तो ये एक डोनेट करता है। तो ये बात हम किस बेस पर जज कर रहे होते हैं, जब हम इनका मीडिया दैट इज योर सॉल्वेंट की अगर आप बात करें वो आपका एक्वस मीडिया होता है, तो ये जो सॉल्वेंट, ये जो एसिड है आपके, ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चूंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस मीडिया में ये जस्ट ओनली 1 प्रोटॉन जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। लेकिन अगर आप दीगर एसिड की बात करें तो दीगर एसिड की कैटेगरी में हर एसिड अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो आयनाइज होते हैं। इट मीन एक्वस मीडिया में हर एसिड आयनाइज होता है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो एक्वस मीडिया के अंदर जो आपके पास सिस्टम है दैट इज वाटर, वो अपना रोल प्ले करता है एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पे। अब इसे हम बच्चों डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं कि एक्वस मीडिया के अंदर क्या हो रहा है कि हर एसिड की जो स्ट्रेंथ है, अब वो अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो आयनाइज हो रहा है, और इसकी आयनाइजेशन की वजह से आगे क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो वाटर है वो अपना कौन सा रोल प्ले कर रहा है, दैट इज डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के तौर पे डिफरेंशिएट कर रहा है। किसको डिफरेंशिएट कर रहा है, एसिड की स्ट्रेंथ को ये डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्वस मीडिया होता है ये क्या करता है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या इसके अलावा आपने अभी क्या नोट किया कि अगर आप इस एसिडिक मीडिया में इसका एसिड का सोल्यूशन जो है वो आप किसी बेस की प्रेजेंस में डालें, यानी कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जो बेसिक हो, तो बेसिक सॉल्वेंट क्या करेगा, क्योंकि बेसिस जो है वो गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, वो क्या करती हैं, इसकी फॉर्मेशन को एक पॉजिटिव आयन की इंक्रीज करेंगी। इस तरह से ये लेवल ऑफ कर देंगी, या दूसरे लफ्जों में एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगी। तो अब बच्चों थोड़ा सा हम वापस चलते हैं ताकि आपको इस स्लाइड से भी थोड़ा समझ आए कि हमने भी क्या बात की कि जो एसिड और बेसिस होती हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को चेंज कर देती हैं बाय चेंजिंग देयर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम सॉल्वेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, नॉन एक्वस, लाइक अमोनिया आप यूज कर सकते हैं, अमाइड है जी, हाइड्राजीन है, ये सारी वो सॉल्वेंट है जो कि गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर की कैटेगरी में आती हैं, और इनकी वजह से एसिड की आयनाइजेशन क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और इन सॉल्वेंट को हम बेसिक सॉल्वेंट का नाम देते हैं। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल में करके बताया बच्चों कि ये तमाम एसिड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं इन बेसिक सॉल्वेंट में।
such a solvent are said to exert a leveling effect on the strength of the acid. तो यही बात आपको मैंने इधर जो है बोर्ड पर समझाई। यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया था कि जितने भी एसिड थे इनकी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई थी, इनहांस हुई थी। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट लाइक अमोनिया, हाइड्रोजीन, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड। तो इनकी प्रेजेंस में जो है वो इसकी आयनाइजेशन इनहांस हो गई, या दूसरे लफ्जों में एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई। तो जब एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो इसको हम बोलते हैं कि वो लेवल ऑफ, यानी वो बढ़ गई है। तो इस तरह से एसिड की स्ट्रेंथ के लिए हमने इस फिनोमिना को यूज किया कि एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट। तो अगर आप ये कंडीशन रिवर्स कर दें, अब ये कंडीशन जो है वो बच्चों आपको मैं बोर्ड पर ही रिवर्स करके दिखाती हूँ कि अब हमारे पास जो है वो कंडीशन चेंज हो कि अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज, फर्ज करें कि ये आपके पास एक बेस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज टू आइंस, वन इज नोन एज सोडियम आइन एंड अदर इज नोन एज OH नेगेटिव आइन। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो अब आपने जिस तरह एसिड की आयनाइजेशन के लिए बेसिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था, इसी तरह इस बेस की आयनाइजेशन को इन्हांस करना चाह रहे हैं। अब बेस की आयनाइजेशन कैसे इन्हांस होगी कि बेस का फंक्शन क्या होता है OH नेगेटिव का, कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। इट मीन अगर आप इस मीडियम में कोई एसिड ऐड कर दें, अब एसिड आप कौन सा ऐड करने लगे हैं, दैट इज योर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो CH3COOH क्या करेगा, अपना प्रोटॉन जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा। As a result, the formation of water will be increased. So the ionization of sodium hydroxide will also increase in the presence of the acidic solvent. So again हम ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि basic strength of any base will be increased in the presence of acidic solvent. तो ये बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी कि जो बेसिक सॉल्वेंट होते हैं, बेसिक सॉल्वेंट लाइक, सॉरी यहाँ पे हम बात करें कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी बेस की वो इंक्रीज हो जाती है जब आप उसमें क्या ऐड करते हैं, कोई भी एसिडिक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो यही बात हमने देखी कि रिवर्स इज ट्रू फॉर एसिडिक सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन हेलाइड, जिसमें तमाम बेसिस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो पता ही चला कि जो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ को तो इन्हांस कर देते हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्वेंट जो है वो डिक्रीज कर देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दी एसिड्स को। क्योंकि अगर आप एसिड के अंदर एसिड ही ऐड करेंगे बच्चों, वो सारे के सारे पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस तरह से वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं वो अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं, ये भी जैसे आपने यहाँ नोट किया कि एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बेसिक सॉल्वेंट में और बेसिस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है एसिडिक सॉल्वेंट में। अब आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप ये वाला एसिड इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इट मीन बच्चों हमें यहाँ से ये पता चला कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्वेंट। अब हम अपने टॉपिक की जानिब वापस देखते हैं कि यहाँ पे मजीद क्या लिखा गया है कि जो एसिडिक सॉल्वेंट है लाइक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और हाइड्रोजन हेलाइड, जिसमें तमाम बेसिस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। तो पता ही चला कि जो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं वो एसिड की स्ट्रेंथ को तो डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन बेस की स्ट्रेंथ को and tend to exert differentiating effect on the strength of the acid.
Thus water behave as a leveling solvent for acids such as HClO4 यानी perchloric acid, HI and HBr, HNO3 and HCl, and bases such as NaH, NaH2 and sodium. अच्छा बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। ये सोडियम एथॉक्साइड ये जो है वो हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि बेसिक सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ पे आपको पहले बताया था कि वाटर जो है वो हमारे पास रोल प्ले करता है एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट के तौर पे। लेवलिंग का क्या मतलब है कि ये जो है वो आयनाइजेशन को इसकी इन्हांस करता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम हुई होगी, तो ये बच्चों बात मैं पहले आपको समझाती हूँ कि एसिड जो है वो कैसे एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे ये नोट किया कि जिस तरह एक्वस मीडिया में एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन पे, तो वहां पे वो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यानी आप ये समझें कि एक्वस मीडिया हो या फिर आपके पास एसिडिक सॉल्वेंट हो, तो ये दो चीजें हैं, जरा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो है एक्वस मीडिया और दूसरा है एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्वेंट हो या एसिडिक मीडिया हो, इन दोनों सूरतों में एसिड की स्ट्रेंथ जो है, जिस तरह आपने ये नोट किया था ना बच्चों यहाँ पे कि बेस ऐड करने पे इसकी स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो इसकी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग अगर आप इसके अंदर कोई भी एसिड ऐड कर रहे हैं लाइक एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये जो एसिडिक एसिड है ये अब इसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस नहीं कर सकता। तो दूसरे लफ्जों में अगर ये इन्हांस नहीं करेगा तो इसके कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करें कि ये डिक्रीज करेगा इसकी एसिड की स्ट्रेंथ को। तो ये एसिड फिर डिपेंड इसकी आयनाइजेशन किस पर करती है, अपने इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस पे करती है कि आया ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है। अगर तो ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा फिर तो इसकी आयनाइजेशन होगी, लेकिन अगर ये वीक होगा तो फिर ये नहीं होगी। तो जिस तरह बेसिक सॉल्वेंट एसिड की आयनाइजेशन को इनहांस कर देते हैं, तो एसिडिक सॉल्वेंट इसके मुकाबले में इनहांस नहीं करते, ये डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर हर एसिड अपने अपने हिसाब से आयनाइज होता है। तो इट मीन जो हमारे पास एक्वस मीडिया है, यानी एक जो बात हम क्या कर रहे हैं दैट इज योर एक्वस मीडिया है, और सेकंड चीज आपके पास क्या है, एसिडिक सॉल्वेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं, क्योंकि हर एसिड अपने अकॉर्डिंग जो है वो आयनाइज होता है। तो एक्वस मीडिया हो या जो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं, जो अगर इनकी स्ट्रेंथ को इनहांस नहीं बल्कि डिक्रीज कर रहे होते हैं, तो अब वहां पर जो है वो फिर हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, के डिफरेंशिएट करेगा कि आया कौन सा एसिड की पावर स्ट्रांग है और कौन से एसिड की पावर जो है वो डिक्रीज है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। तो इससे हमें पता चला कि चाहे वाटर हो वो भी एसिड की स्ट्रेंथ को जो है वो बराबर करता है, इसी तरह जो है वो जो हमारे पास एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं वो भी इसको बराबर कर रहे होते हैं या फिर वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, और उनका रोल डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पर होता है। तो इससे पता चला कि जो हमारे पास एक्वस मीडिया होता है उसमें एसिड की स्ट्रेंथ बिल्कुल सिमिलर होती है जैसा कि हमारे पास वाटर के अंदर अगर आप करेंगे, तो आपने एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए सच अ सॉल्वेंट शुड बी सिलेक्टेड दैट आयनाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस टू डिफरेंट एक्सटेंट, सच अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो ये आपके पास बच्चों डेफिनेशन है कि ऐसा सॉल्वेंट आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ देखें, अ, आपको ये बता रही थी कि डिफरेंशिएटिंग के लिए दो चीजें हैं, वन इज वाटर एंड अदर इज एसिटिक एसिड। क्योंकि एसिटिक एसिड आपके पास क्या है, एक वीक एसिड है, तो एसिड और एसिड अगर सेम हो जाएंगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ को इन्हांस नहीं बल्कि क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो फिर हर एसिड अपने पर्सपेक्टिव, अपने इलेक्ट्रोलाइट की बेस के हिसाब से आयनाइज होता है। तो फिर हम ऐसा सॉल्वेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आयनाइज करेगा अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाता है। तो यही वजह है बच्चों, एसिटिक एसिड जो है वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट के तौर पे रोल प्ले करेगा टुवर्ड दी हैलोजन एसिड हो सकते हैं जैसे कि HCl, HBr और HI। तो उन्हीं की यही वजह होती है बच्चों कि जब भी एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करना होता है तो हमेशा हमेशा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कौन सा है, वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड था, ठीक है। तो सेम एसिड और सेम एसिड है, तो अगर आप इनका सोल्यूशन डायरेक्ट उसमें तैयार करते हैं तो ये जो एसिड है वो फिर अपने अकॉर्डिंगली जो है वो आयनाइज होंगे, और इस तरह से एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं।
लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप एसिटिक एसिड को यूज करते हैं एक्सटेंसिवली टू डिटरमिन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इनका कंपैरिजन का ऑर्डर बच्चों ये निकलता है। तो इससे बच्चों ये पता चला कि जो एसिटिक एसिड है इसने अपना रोल प्ले किया लेवलिंग इफेक्ट के तौर पे टू डिटरमिन दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस। अब ये बच्चों बात जो है वो उन्होंने आगे से डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये हम बोर्ड पे वापस चलते हैं ताकि आपको समझ आए कि एक तो बात हमने सबसे स्टार्ट में की कि एसिड की स्ट्रेंथ इनहांस होती है किसके अंदर, बेसिक मीडिया के अंदर। उसके बाद हमने बात की कि इस एसिड का सोल्यूशन अगर आप इसी एसिडिक मीडिया में बनाते हैं तो इसकी बेस पे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड हमारे पास वीक है। अब हम बात करें ये वाली कि अगर आप बेस है हमारे पास, तो बेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना हो या बेस के आयनाइजेशन को इंक्रीज करना हो तो उसके लिए आपने एसिडिक सॉल्वेंट इस्तेमाल किया। और अब अगर आप बेस की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, यानी आप बेस के लिए आप कोई डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो बेस के लिए फिर बेसिक सॉल्वेंट ही आपने इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर आपके पास जो एग्जाम्पल आ सकती है वो अमीन्स। ये क्या है हमारे पास, अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्शरी अमीन है। ये सारे के सारी जो सॉल्वेंट है ये सारे बेसिक हैं। बेसिक सॉल्वेंट में बेस की स्ट्रेंथ को आप कंपेयर कर सकते हैं और उस टाइम पे आप उनको नाम देते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये बात आपको समझ आई होगी कि जो एसिटिक एसिड है वो लेवलिंग इफेक्ट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन दी बेस स्ट्रक्चर ऑफ बेसिस। इट ब्रिंग्स बेस स्ट्रेंथ ऑन द सेम लेवल। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आपने डिटरमिन करनी है, अमोनिया प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शरी मीन, इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और इनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इनहांस होके लेवल हो जाती है। तो फाइनली हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि जो एसिडिक सॉल्वेंट होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं एसिड और बेस, एसिड की स्ट्रेंथ को, और बेसिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो डिफरेंशिएट करते हैं बेसिस को। लेवल आपका मतलब होता है बढ़ जाना कि अब एसिड की स्ट्रेंथ को, दो चीजें बच्चों, एक एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना और एक एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। अगर एसिड की स्ट्रेंथ को आपने बढ़ाना है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है लेवल ऑफ। तो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपने बेस इस्तेमाल करनी है, और अगर आपने एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो उसके लिए आपने एसिडिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है, और सेम क्राइटेरिया रिवर्स हो जाएगा फॉर बेसिस के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि आपको ये समझ ना आ सके। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड थ्योरी आती है, दैट इज नोन एज द कीनोनाइट थ्योरी। ठीक है, तो कीनोनाइट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो मेन फॉर्म बनती हैं कि पहले तो हम इसके पोस्टुलेट देखेंगे कि जो कीनोनाइट थ्योरी है उसमें हम एसिड बेस इंडिकेटर को कहते हैं कि वो टू फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक इनके लिए फॉर्म की इंटरकन्वर्जन हम लिखते हैं, दैट इज नोन एज द टाटोमेरिक फॉर्म। टाटोमेरिज्म आपने सेकंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के टॉपिक में डिटेल में स्टडी किया है। तो ये टाटोमेरिज्म आइसोमेरिक फॉर्म होती है इनकी, जिसमें एक फॉर्म को हम नाम देते हैं बेंजीनाइट या समटाइम बेंजोइट फॉर्म भी कह देते हैं, और सेकंड फॉर्म को हम इसी थ्योरी के ऊपर कीनोनाइट फॉर्म का नाम देते हैं। क्योंकि ये दो फॉर्म होती हैं जिनमें एक को बेंजीनाइट और दूसरी को हम कीनोनाइट का नाम देते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि एक जो फॉर्म होती है उसका कलर डार्क होता है, और डार्क कलर किसका होता है, कीनोनाइट का। जैसे आप यहाँ देखिए फिनाफ्थलीन के आपने दो कलर पड़े हुए हैं, एक पिंक और एक कलरलेस। क्योंकि ये कलर डार्क है इसके मुकाबले में, तो हम ये कहेंगे कि पिंक कलर क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कीनोनाइट स्ट्रक्चर, while in acidic media phenolphthalein shows colorless, so it has a benzenite form in acidic media। अब ये आपके सामने उन्होंने कंपेयर करने के लिए स्ट्रक्चर्स के लिए ये आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर जो है वो कीनोनाइट का होगा और ये स्ट्रक्चर आपके पास बेंजीनाइट फॉर्म का होगा, और दोनों फॉर्म के अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये फॉर्म और ये फॉर्म कब बनती है। तो बच्चों ये फॉर्म की डेवलपमेंट होती है जब आप इस सॉल्यूशन की पीएच को चेंज करते हैं। आप जानते हैं कि जब टाइट्रेशन होती है तो टाइट्रेशन के अंदर हम अगर फ्लास्क के अंदर बेस ले रहे होते हैं तो ऊपर से जो हमारे पास ब्यूरिट है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड के ड्रॉप्स जब बेसिक के अंदर ऐड होते हैं तो जब बेस जो है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाती है या पीएच चेंज होती है,
फ्रॉम एसिडिक मीडिया टू बेसिक मीडिया, तो उस वक्त जो है वो पीएच चेंज होने से एक टाटोमेरिक फॉर्म जो है वो डोमिनेट हो जाती है दूसरी टाटोमेरिक फॉर्म के अंदर, और ये सारी चेंजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस की प्रेजेंस में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइट्रेशन के वक्त मीडियम चेंज होता है फ्रॉम एसिडिक टू अल्कलाइनिक मीडिया, और ये चेंज जो है पीएच के अंदर वो कन्वर्ट कर देती है टाटोमेरिक फॉर्म को दूसरी टाटोमेरिक फॉर्म में, और इस तरह से कलर की चेंजेस वाकया होती हैं। अब तो ये आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप लोगों ने एज इट इज और इसी तरह ही इन सारे स्ट्रक्चर्स को तैयार करना है। अगर आप ये तैयार नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं अवार्ड किए जाएंगे। इन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है आपने। ये बच्चों आपके सामने स्ट्रक्चर है किसका, फिनाफ्थलीन का। फिनाफ्थलीन में देखें जी, पहले हमने बेस ऐड की, तो अभी आपको बताया द फंक्शन ऑफ बेस इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, या प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करती है ये, तो ये H पॉजिटिव आयन इस साइड से निकल जाएगा। एज ए रिजल्ट दिस फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू O नेगेटिव आयन। So in this form, there is a possibility of resonance. As a result, this negative charge will be delocalized here to in this form, while this whole bond will be shifted toward this side. As a result, this bond will be shifted here. तो जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इट मीन ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया है, ये कीनोनाइट फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जबकि ये स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, बेंजीनाइट फॉर्म का है। तो फिनाफ्थलीन का जो कलर पिंक होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कीनोनाइट स्ट्रक्चर है, while phenolphthalein remains colorless in acidic media due to the presence of this benzoid structure। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब उसके बाद सेम स्ट्रक्चर जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं फॉर मिथाइल ऑरेंज के लिए। तो मिथाइल ऑरेंज के अंदर दो कलर होते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में, कि बेंजीनाइट फॉर्म में इसका कलर क्या होता है, येलो, जबकि कीनोनाइट स्ट्रक्चर में इसका कलर क्या हो जाता है, रेड। तो जिस तरह बच्चों आपने फिनाफ्थलीन के स्ट्रक्चर देखे, सेम यही स्ट्रक्चर जो है वो आप किसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर मिथाइल ऑरेंज के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि आपने इधर एसिड ऐड किया, ठीक है। तो जब हम एसिड ऐड करते हैं तो फंक्शन ऑफ बेस इज द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये एक बेसिक इंडिकेटर है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, इस प्रोटॉन को ले लेना, और इस एन डबल बॉन्ड एन पर क्या आ जाएगा, एक प्रोटॉन आ जाएगा। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ आएगा तो इसकी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म होना है तो इसके लिए ये पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये होल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। एज ए रिजल्ट दिस होल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हेयर। तो यही स्ट्रक्चर दोबारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और उसके नतीजे में अब आप नोट करें कि ये डबल बॉन्ड अब यहाँ से निकल के इधर आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर इधर शिफ्ट हो गया है। इसी तरह ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, अब यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन के एक बॉन्ड बेंजीन रिंग से है, दो बॉन्ड मिथाइल ग्रुप से है, और ये एक फोर्थ बॉन्ड जिसकी जानी मूव हुआ है, इसकी वजह से नाइट्रोजन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास कीनोनाइट स्ट्रक्चर होगा, जबकि ये स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीनाइट स्ट्रक्चर होगा। तो बेंजीनाइट स्ट्रक्चर में इसका कलर क्या होगा जी, येलो, जबकि एसिडिक मीडिया के अंदर जो है वो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट टॉपिक है, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिडॉक्स इंडिकेटर, और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ देखें, हम ये कहते हैं कि रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी। रिडॉक्स इंडिकेटर्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके डिफरेंट कलर होते हैं ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म में, और इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट करें यहाँ पे एन पॉजिटिव इसकी पावर है और एन नेगेटिव रिवर्सिबल इनटू लॉग नेचुरल। तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसका एक कलर होगा और रिड्यूस फॉर्म में इसका सेकंड कलर होगा। तो बच्चों आपने इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपने ये नॉनेस्ट इक्वेशन कहलाती है। नॉनेस्ट इक्वेशन क्या है कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग नेचुरल ओवर एल एन पॉजिटिव। ये हमारे पास लॉग नेचुरल की इक्वेशन थी, और यहाँ पे E क्या है, पोटेंशियल है इस सिस्टम का। ये E, इस वाले E की बात करें कि ये पोटेंशियल है जो कि सिस्टम में डिवेल्प हुआ है, जबकि ई नॉट जो है ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है इंडिकेटर का। ठीक है, ये ई नॉट क्या है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। और ये एसेंशियल है दैट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए रिडॉक्स इंडिकेटर शुड बी क्वाइट क्लोज टू दैट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन एट द एंड ऑफ द टाइट्रेशन। अब आप लोगों के सिलेबस में चूंकि रिडॉक्स इंडिकेटर की टाइट्रेशन आप लोगों ने परफॉर्म की थी,
तो वहां पे आप लोगों ने नोट किया था कि डाइफेनाइलमीन जो है वो एक रिडॉक्स इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है, और वहां पे जिस तरह एसिड बेस्ड रिएक्शन होते हैं, इन द सेम वे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम उनको इस्तेमाल करते हैं, और उसके जरिए वो भी अपने मखसूस पॉइंट पर अपने कलर चेंज करते हैं जब उनके अंदर ऑक्सीडाइज से रिड्यूस फॉर्म जो है वो उनकी डेवलप होती है, और शार्प कलर चेंजेस जो है वो इनके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। तो बच्चों, आपका टॉपिक आज का यहीं तक था। इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।